Dear students and viewers of my YouTube channel ACI Mathematics, I have finished lesson 4.1 quadratic equation. Now we have to discuss about the solution of quadratic equation, how quadratic equation will be solved. So in case of linear equation, there is only one solution. Linear equation in one variable gives only one solution. For example, 2x is equal to 4, so x is equal to 2. Solution is that value of variable at which LHS is equal to RHS. So अगर x का वैल्यू 2 पुट करें, 2 2 जा 4, LHS RHS इक्वल होगा. So linear equation have only one solution if it is in one variable. And what is number of solution in quadratic equation? Like x square minus 4 is equal to 0. This is quadratic equation and the number of solution is 2. The maximum number of solution is given by exponent. Like here exponent is 2, so quadratic equation gives 2 solution. In this question we can find solution by factorization method. 4 is 2 square and is equal to 0. इसका फैक्टर निकाल लें, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अगर x का वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, देन 2 माइनस 2 इज 0. 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज ऑल्सो 0. Then at x is equal to 2, LHS and RHS both become 0. So x is 2, x is equal to 2 is solution of the equation. Similarly, if we put x is equal to minus 2, so this factor becomes 0. Minus 2 plus 2 cancel out होके 0 हो जाएगा and 0 multiplied by this anything is 0. Therefore, LHS RHS is equal at x is equal to negative 2. So negative 2 is also solution of the equation. Therefore, this quadratic equation has two solutions, x is equal to 2 and minus 2. Next is method of solving quadratic equation are first factorization method, second is completing square, and third is by using quadratic formula. So हम सीखते हैं सबसे पहले method of solving quadratic equation by factorization. Let us consider a quadratic equation like x square minus x plus 12 is equal to 0. This is a quadratic equation. तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज करना होगा. इक्वेशन का जो LHS में एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइज करना होगा. हम कोई भी मेथड फैक्टराइजेशन के लिए जो सूटेबल होगा यूज करेंगे. यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, तो मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करना चाह रहे हैं. सो इन दो टर्म में x कॉमन है, x इज कॉमन. इस टर्म में बचेगा x माइनस 4 प्लस इन दोनों टर्म में 3 कॉमन है, टेक 3 कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अब इस बचे हुए हेयर इज 2 टर्म्स, 2 टर्म में कन्वर्ट हो गया. 3 टर्म ट्राइनोमियल था, अब बाइनोमियल में कन्वर्ट हो गया. दोनों में कॉमन फैक्टर है x माइनस 4. सो टेक x माइनस 4 एज कॉमन इन बोथ द टर्म. तो फर्स्ट टर्म लीव x and second term leave 3.
x plus 3, in between sign is positive, this is the factor. अब हम डिसाइड करते हैं कि x का वैल्यू अगर 4 पुट कर दें तो दिस फैक्टर बिकम 0 and 0 multiplied by anything is 0, therefore x is equal to 4 is one of the solution of given quadratic equation. Similarly, अगर हम x is equal to -3 पुट करें तो -3 +3 0, ये फैक्टर 0 हो गया, 0 multiplied by any number any quantity is also 0, फिर से LHS और RHS इक्वल हो गया, इसका मतलब हुआ x is also -3. तो here are two solution of this given quadratic equation, x is equal to 4 and -3. This is the method of solving quadratic equation by factorization. Question number 1, exercise 4.2. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. फर्स्ट क्वेश्चन x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0. तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं सच दैट इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इस 10 के इक्वल -10 के इक्वल आए एंड एड अप करके -3 आए, ऐसा एडजस्टमेंट करते हैं नंबर में. तो दिस इज क्वाइट ईजियर. सो हम बिना कोई प्रोसेस के सीखते हैं. -3x इज इक्वल टू -5x + 2x -10 इज इक्वल टू 0. -5x + 2x is -3x. This is -3x and -5 multiplied by +2 is -10. -5 multiplied by 2 is -10. So we have considered -3x is equal to -5x + 2x. अब इस दो टर्म में हेयर इज क्वाड्रिनोमियल, 4 टर्म हो गया, 2 यहाँ है 2 यहाँ है. तो फर्स्ट 2 टर्म में जो भी कॉमन हो सकता है कॉमन करते हैं. इट इज x. फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन है, x - 5 प्लस लास्ट 2 टर्म में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लें, x - 5 इज इक्वल टू 0. अभी ये जो आगे क्वाड्रिनोमियल था अब बाइनोमियल में कन्वर्ट हो गया है. हियर इज 2 टर्म्स, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, बोथ द टर्म हैव कॉमन फैक्टर x - 5. तो x - 5 को कॉमन निकाल लें तो फर्स्ट टर्म लीव विथ x, फर्स्ट टर्म के पास x बचेगा एंड सेकेंड टर्म के पास 2 बचेगा इज इक्वल टू 0. सिंपली अगर हम x का वैल्यू 5 पुट कर दें तो 5 - 5 0, 0 multiplied by anything is 0. So we can say x is equal to 5 और x के प्लेस पे -2 पुट कर दें तो -2 + 2 is 0, 0 multiplied by anything is also 0. So x is -2 also. X is equal to 5 और -2. These are the solution of question. Second part of question number 1. 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले इनको फैक्टराइज करने के लिए क्या करें कि कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करें. 2 multiplied by -6 इज -12. -12 तो मिडिल टर्म को 2 पार्ट में हमें स्प्लिट करना है सच दैट कि दोनों पार्ट एड अप होकर के +x हो जाए और उसके कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होकर के -12 हो जाए. सो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x² + 4x - 3x एड अप होकर के x बचेगा एंड -6 इज इक्वल टू 0. बट 4 और -3 को अगर मल्टीप्लाई करें 4 इंटू -3 दिस गिव्स -12. तो इसलिए हमने इसको इस तरह से एडजस्ट किया कि एड अप होकर के x बचे
और दोनों कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके -12 बचे। नेक्स्ट स्टेप इज कि दोनों में से मैक्सिमम जो कॉमन हो सकता है फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म में अलग अलग कॉमन फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट टू टर्म में 2x कॉमन है, 2x कॉमन निकालने पर यहाँ बचेगा x एंड यहाँ बचेगा 2 माइनस लास्ट टू टर्म में -3 कॉमन है, -3 तो बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रिनोमियल जो सेकेंड स्टेप में था थर्ड स्टेप में बाइनोमियल में कन्वर्ट हो गया एंड बोथ टर्म ऑफ बाइनोमियल हैज x प्लस 2 एज कॉमन फैक्टर, सो टेक x प्लस 2 कॉमन इन बोथ द टर्म। x प्लस 2 यहाँ से निकल जाए तो फर्स्ट टर्म में बचेगा 2x एंड सेकेंड टर्म में बचेगा -3 इज इक्वल टू 0। अब हम दूसरे तरीके से डिफरेंट स्ट्रैटेजी से निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे आ गया तो सोचने के बजाय हम लिखते हैं दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2। 2 को इधर ले जाए नेगेटिव हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू -2 और अदर फैक्टर हमारे पास जो अवेलेबल है और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस देयरफॉर 2x इज इक्वल टू -3 को RHS में ले जाएं, 2x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर दिस implies that x is equal to 3 divided by 2, 3 divided by 2. Therefore in this question there are two solutions, x is equal to -2 and x is equal to 3 upon 2 and 3 upon 2. This is the roots or solution of the equation. Third part, root 2x square plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0. सेम प्रीवियस प्रोसेस लगाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज √2 एंड कांस्टेंट टर्म विच इज 5 √2 को मल्टीप्लाई करते हैं। √2 मल्टीप्लाइड बाई 5 √2, दिस √2 एंड दिस √2 गेट मल्टीप्लाइड, √2 एंड √2 का मल्टीप्लीकेशन √4 होगा और √4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। सो दिस √2 एंड √2 get multiplied to become 2, 2 multiplied by 5 which is 10। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 10 आ गया। तो मिडिल टर्म को इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोडक्ट 10 आए और उनका सम 7 आए। तो √2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 is equal to 0। नाउ इन दोनों टर्म में कॉमन केवल x दिखाई दे रहा है, सो हम और थोड़ा इसको इम्प्रूव करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। दिस टू एनी नंबर कैन बी रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अंडर स्क्वायर रूट, लाइक दिस टू कैन बी रिटेन एज √2 into √2। Similarly, in any place we can use 3 is equal to √3 into √3. So therefore here this 2 can be written as √2 into √2, √2 x square plus this 2 can be written as √2 into √2 into x plus 5x plus 5 √2 is equal to 0। इसमें से √2x इज कॉमन इन फर्स्ट टू टर्म, इसमें से √2x अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म के प्लेस पे x बचेगा प्लस √2x यहाँ से भी निकल रहा है, सेकेंड टर्म में √2x निकलने पर √2 बचेगा प्लस
रिमेनिंग 2 टर्म में से, बचे हुए 2 टर्म में से 5 को अगर कॉमन ले लें, 5 देन x प्लस √2 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रिनोमियल वापस बाइनोमियल में कन्वर्ट हो गया। इस बाइनोमियल में से x प्लस √2 इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स। x प्लस √2 को कॉमन कर लेंगे दोनों टर्म में से, तो फर्स्ट टर्म √2x छोड़ेगा एंड सेकेंड टर्म 5 छोड़ेगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम इस टर्म को, इस फैक्टर को अलग अलग 0 लिखते हैं। आइदर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर, और दिस एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू √2 को RHS में ले चल लें नेगेटिव √2, और सेकेंड फैक्टर विच इज √2x प्लस 5, √2x plus 5 is equal to 0. This implies that √2x is equal to 5. This implies that x is equal to 5 upon √2. x is equal to 5 upon √2. तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, रूट्स है, x is equal to negative √2 and negative 5, negative, here is √2x इज नेगेटिव 5, क्योंकि ये 5 अगर RHS में चलेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। √2x इज नेगेटिव 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू नेगेटिव 5 अपॉन √2। तो x के दो वैल्यूज हो गया, नेगेटिव √2 एंड नेगेटिव 5 अपॉन √2। दीज आर द सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, इसमें फ्रैक्शन है, कहीं कांस्टेंट टर्म में फ्रैक्शन है, तो इसके लिए हम जितने भी टर्म्स हैं सब के नीचे 1 लिख लें। 1, 1, 8, इन तीनों का एलसीएम निकाल लें विच इज 8। 1 से डिवाइड करें, 1 8 जा 8, और 8 जा में 2 मल्टीप्लाई करें 16, 8 2 जा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 1 8 जा 8 में 1 से मल्टीप्लाई करें 8x, और 8 1 जा तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करें 1 इज इक्वल टू 0। इन नेक्स्ट स्टेप ये 8 डिनोमिनेटर में है या होल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो RHS में 0 से मल्टीप्लाई होगा एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज 0, तो LHS में बचेगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको मिड टर्म में स्प्लिट करेंगे। मिड टर्म में स्प्लिट करने के लिए दिस 16 एंड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, या हम इसमें स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। लाइक 16x स्क्वायर को लिख सकते हैं 4x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 1। 8x को लिख सकते हैं 2 इंटू 4x इंटू 1, प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज a माइनस b होल स्क्वायर। तो दिस गिव्स 4x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 होल स्क्वायर, इट मीन्स 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो आंसर होगा, दो रूट्स होगा, दोनों सेम होगा बिकॉज फैक्टर्स आर सेम। सो कैसे फाइंड आउट करें? दिस इज इक्वल टू 0 लिखें, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट 4x इज इक्वल टू 1, और देयरफॉर x is equal to 1 upon 4. In final step, we can write x is equal to 1 by 4. For second factor, also roots will be 1 upon 4. So here is two answer of x, 1 upon 4 and 1 upon 4. When roots are same,
then it is called coincident root or equal roots. This equation may be solved by completing the square. 100x square can be written as 10x and whole square, 10x multiplied by 10x, minus this 20 can be written as 2 into 10x into 1. इन सबको मल्टीप्लाई करके 20x होगा एंड दिस 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब फिर से आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज मे बी रिटन एज 10x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर होल स्क्वायर को दो फैक्टर में लिखें 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. एक फैक्टर को 0 लिख दें, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, therefore 10x is equal to, this implies that 10x is equal to 1 और therefore x is equal to 1 upon 10. x is equal to 1 upon 10. Second factor also gives x is equal to 1 upon 10. So here are two roots which are equal to 1 upon 10. So answer is 1 upon 10 and 1 upon 10. Question number 2. We have to solve example 1 which is on page number 71 of NCERT book. Example number 1. John and Jivanti together have 45 marbles. After some time, they lost 5 marbles each, and then the product of marble they have is equal to 124. Now we have to find out how many marbles they have in starting. So let us suppose have John has X marble, then Jivanti has 45 माइनस X मार्बल. क्योंकि दोनों को मिला करके 45 मार्बल्स हैं. अलग एग्जांपल ले लें कि अगर जॉन दोनों के मिला करके 45 मार्बल्स हैं और जॉन के पास अगर 20 मार्बल्स हो, जॉन के पास 20 मार्बल्स हो, तो जीवंती के पास कितना मार्बल होगा इसको पता करने के लिए टोटल दे हैव 45 एंड जॉन हैव 20, देयरफॉर जीवंती हैव, सब्ट्रैक्ट करके 45 माइनस 20 हम पता कर सकते हैं. सिमिलरली दे बोथ गेट टोटल ऑफ 45 मार्बल्स. हमने एक को एज्यूम किया, लेट जॉन हैज X मार्बल, देयरफॉर जीवंती हैज total which is 45 minus X marble, and after some time, after losing the marble, after losing 5 marble each, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए, तो जॉन के पास बचा now X minus 5 मार्बल, एंड जीवंती के पास बचा 45 माइनस X माइनस 5 मार्बल, 45 माइनस X माइनस 5 मार्बल्स. इसको सिंप्लीफाई करें तो 45 माइनस 5 इज 40, विच इज 40 माइनस X मार्बल्स. खोने के बाद जॉन्स के पास X माइनस 5, जीवंती के पास 40 माइनस X मार्बल्स है, एंड देन इनका प्रोडक्ट जो बचा हुआ है मार्बल इनके पास, इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा विच इज 124. तो अब इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे. यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन. ये x जो है दोनों में मल्टीप्लाई होगा. x मल्टीप्लाइड बाई 40 इज 40x
एंड x मल्टीप्लाइड बाई x इज नेगेटिव एक्स स्क्वायर। अब इस -5 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। -5 मल्टीप्लाइड बाई 40 इज -200। -5 मल्टीप्लाइड बाई x इज +5x इज इक्वल टू 124। फिर से सॉल्व करें। नेगेटिव एक्स स्क्वायर एंड 40x प्लस 5x इज प्लस 45x माइनस 200, और इधर से -124, इधर पॉजिटिव है, LHS में लाएंगे तो नेगेटिव होगा। -200 और -124 मिलकर के होगा -324, और RHS में बचेगा 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें। टेक नेगेटिव एज कॉमन इन होल, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और प्लस 45 था, अब -45 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव हमने कॉमन लिया है, और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। इन नेक्स्ट स्टेप दिस नेगेटिव get divided by this 0 on RHS and become 0. So next step में बचेगा x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 300। इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए इट इज स्लाइटली लेंदियर, तो हम इस 324 को एक नया टेक्निक हम आपसे डिस्कस करते हैं कि कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट होगा। इसके लिए इस 324 को फैक्टराइज करेंगे। 324 डिवाइडेड बाय 2 162। एक फैक्टर निकालने के बाद 162 में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, बचता है 160। बट 160 हमें -45 चाहिए, सो दिस इज नॉट करेक्ट। नाउ इस प्राइम फैक्टर को आगे बढ़ाते हैं, फिर से डिवाइड करते हैं 2 से, इट इज 81। तो दो ग्रुप बनता है, एक 2 2 जा 4 और एक 81। 4 और 81 किसी तरीके से प्लस या माइनस करके, दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके -45 नहीं आ रहा है। देयरफॉर इस फैक्टर को और आगे बढ़ाते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, देन 3 27 जा 81, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 27 प्लस या माइनस करने से 45 नहीं आ रहा, -45, तो फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर से डिवाइड करेंगे 3 से, 3 9 जा 27, और अब फैक्टर को दो ग्रुप में बांटते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 एंड 9, इस पूरे प्राइम फैक्टर्स के दो ग्रुप बनाते हैं सच दैट कि 36 और 9 ऐड करें तो 45 आएगा। बट हमें चाहिए -45, तो दोनों ही में नेगेटिव साइन लगा दें। -36 -9 का आंसर -45 होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -36 मल्टीप्लाइड बाई -9 गिव्स 324 विच इज पॉजिटिव। तो अब हम इस मिडिल टर्म को लिखेंगे -36x -9x विच गिव्स -45x, एंड इन दोनों का प्रोडक्ट +324 होगा इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रिनोमियल में फर्स्ट टू टर्म में से जितना कॉमन हो सकता है, हेयर x कॉमन है, दोनों टर्म में x कॉमन निकालें तो फर्स्ट टर्म में x बचेगा और सेकेंड टर्म में 36 बचेगा। इन लास्ट टू टर्म हेयर इज -9 कॉमन इन बोथ द टर्म, तो फर्स्ट टर्म में x बचेगा और सेकेंड टर्म में -36 बचेगा।
इज इक्वल टू 0। वापस दिस क्वाड्रिनोमियल चेंज इनटू बाइनोमियल, दो टर्म आ गया, तो दोनों टर्म में x माइनस 36 इज कॉमन, टेक x माइनस 36 एज कॉमन। फर्स्ट टर्म में बचेगा x एंड सेकेंड टर्म इज 9 इज इक्वल टू 0। अब हम आसानी से आंसर ले लेते हैं। x को अगर 36 पुट कर दें तो 0 हो जाएगा टोटल, सो x इज 36 एंड x इज इक्वल टू 9 पुट करने से दिस टर्म इज 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर इज ऑल्सो 0, सो x इज 9 ऑल्सो। तो x के दो वैल्यूज आए 36 एंड 9। तो आंसर को थोड़ा हम अलग तरीके से लिखने के लिए कोशिश करते हैं। देयर आर टू पर्सन, जॉन एंड जीवंती। जॉन के पास अगर 36 मार्बल देते हैं तो इस केस में जीवंती के पास 9 मार्बल होगा, या फिर जॉन को 9 मार्बल देते हैं, जॉन के पास अगर 9 मार्बल है तो जीवंती के पास 36 मार्बल होगा, सच दैट सम ऑफ मार्बल्स इन ईच केस, ईच ऑफ टू केसेस रिमेन 45, देन दिस 2 is the answer. 36, 9 or 9, 36 are the set of answers. Second part of question number 2. There is a cottage industry produces some toy in a day. Let number of toys produced in a day, number of toys produced in particular day is x. पता नहीं कितना टॉय बनाता है, तो हमने मान लिया x टॉय बनाता है, एक पर्टिकुलर डे का कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड इसके बाद है कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू 55 माइनस रुपीज 55 माइनस x number of toys produced at that day, 55 minus number of toys produced at that day. Now एक दिन में x toy प्रोड्यूस होता है एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 55 माइनस x पर टॉय। एक टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 55 माइनस x है, देन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन is equal to this number of toy produced multiplied by cost of each toy, cost of production of each toy, which is x into 55 minus x. But we know that cost of total produced item at that day is rupees 750. So this is the equation, x which is number of toys and 55 minus x which is cost of each toy or per toy, and their product means total cost which is 750 at that day is given. Therefore we can solve this to form a quadratic equation, use distributive property। इस x को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो x मल्टीप्लाइड बाई 55 इज 55x माइनस x मल्टीप्लाइड बाई x इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब हम इस दोनों टर्म को RHS पे ले चले तो एक्स स्क्वायर RHS में चल करके पॉजिटिव एक्स स्क्वायर एंड 55x RHS में चल करके नेगेटिव 55x एंड 750 RHS में ही है, तो जो साइन है 750 का वो साइन रहेगा, मतलब प्लस 750, और LHS में 0 बच जाएगा, इसको हम उल्टा करके 0 को इस साइड में लिख सकते हैं। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव फॉर्म्ड बाय सिचुएशन 2 और क्वेश्चन नंबर 2। नाउ फैक्टराइज दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर
750, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, तो ओनली 750 को फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टर निकालें। 750 2 से डिवाइड करें 375, 3 से डिवाइड करें 1 2 5, देन 5 से डिवाइड करें 5 से 25। अब इस टोटल जितने प्राइम फैक्टर्स हैं सबके दो ग्रुप बनाएं सच दैट कि दोनों ग्रुप को ऐड करने से -55 आए और दोनों ग्रुप को मल्टीप्लाई करने से 750 आए। तो इस ग्रुप में 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 एंड 25 का प्रोडक्ट तो वही होगा विच इज 750। एंड दोनों को अगर नेगेटिव लिख दें, -30 -25, तो एडअप होकर के -55 बनेगा। तो अब हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए x² - 30x - 25x + 750 = 0। क्वाड्रिनोमियल हो गया, 4 पार्ट 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। तो इस क्वाड्रिनोमियल के दो टर्म में से पॉसिबल जितना कॉमन है कॉमन निकालते हैं। फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन है, x - 30 माइनस इन दोनों में -25 कॉमन है, -25, देन x - 30 = -30। दोनों टर्म में से कॉमन ले लें x - 30, तो फर्स्ट टर्म में बचेगा x एंड सेकेंड टर्म -25, x - 25 = 0। अब x आंसर हो जाएगा, x = 30 एंड x = 25। तो 30 एंड 25 आर द रूट्स ऑफ और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन दैट डे इज 30, 25 और वाइस वर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, फाइंड द टू नंबर which sum is 27 and their product is 182। हमें दो नंबर पता करना है जिसका सम 27 है, दोनों को प्लस करके 27 एंड दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट = 182 है। अब अगर किसी दो नंबर का सम 27 हो और उसमें से एक नंबर 15 मान लें, तो नेक्स्ट वाला नंबर 27 - 15 होगा। तो सिमिलरली सम ऑफ टू नंबर इज 27 एंड नन ऑफ द नंबर इज नोन। हमें कोई नंबर पता नहीं है, तो लेट वन नंबर इज x, देन अदर नंबर इज 27 - x, therefore other number is equal to 27 - x। ये हो गया। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट 182 होगा, इज x, therefore other number is equal to 27 - x, and then product of the two number, one number and other number is 182। it means कि x multiplied by 27 - x is equal to 182। अब इस x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 27x - x² is equal to 182। 182 को या फिर इस LHS में जो दो टर्म है इनको RHS में ले चलें, तो x² का साइन RHS में प्लस हो जाएगा, 27x बिकम -27x एंड प्लस 182, और जो जीरो इधर LHS में बचता था उसको RHS में लिख दिया, इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करने के लिए
फैक्टराइजेशन यूज करते हैं। नाउ हमारे पास 182 है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है। 182 डिवाइडेड बाई 2 इज 91। फिर 91 नेक्स्ट फैक्टर 7 है। 7 13 जा 91। अब ये सारे फैक्टर्स हो गए प्राइम फैक्टर्स, इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, लाइक 2 7 जा 14 एंड 13। दोनों का प्रोडक्ट 182 तो आएगा ही, और दोनों को सम कर दें तो दोनों के पास नेगेटिव ले लेते हैं। नेगेटिव 14 प्लस नेगेटिव 13, दोनों का सम आएगा नेगेटिव 27। तो अब इस नेगेटिव 27 को इसके अकॉर्डिंगली नेगेटिव 14x एंड नेगेटिव 13x लिखेंगे। देयरफॉर जो ट्राइनोमियल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, इन दो टर्म में से x कॉमन लिया, x माइनस 14 माइनस इन दोनों टर्म में नेगेटिव 13 कॉमन लिया। यहाँ पर x बचेगा माइनस यहाँ पर 14 बचेगा इज इक्वल टू 0। अगेन इस बाइनोमियल में से x माइनस 14 कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 14, तो फर्स्ट टर्म में बचेगा x एंड सेकेंड टर्म में बचेगा 13 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो आंसर है, x का वैल्यू 14 पुट कर दें तो 0 हो जाएगा सब, या फिर x इज इक्वल टू 13 पुट कर दें तो 0 हो जाएगा। तो बोथ आर द आंसर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 14 और 13। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर sum of whose square is equal to 365. So what is consecutive integer? अगर हम फर्स्ट इंटीजर लिखते हैं 2 तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 3। अगर फर्स्ट इंटीजर लिखते हैं 11 तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 12। तो हमें दोनों ही नहीं पता हो तो फर्स्ट इज x, अगर फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर x है तो सेकेंड इज x प्लस 1। तो लेट consecutive integers are x and x plus 1 एंड दोनों के स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू इंटीजर्स। तो फर्स्ट इंटीजर इज x, स्क्वायर ऑफ x इज x स्क्वायर प्लस सेकेंड इंटीजर इज x प्लस 1 स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम 365 है। दिस इज एक्स स्क्वायर। अब इसको इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इसमें आइडेंटिटी लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, टोटल स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लाइक टर्म है, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 इज 2x प्लस 1 माइनस 365। अगर LHS में इसको ले आएंगे तो नेगेटिव 365 इज इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट स्टेप, 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 में से 365 सब्ट्रैक्ट कर लें, नेगेटिव 365 64, इट इज नेगेटिव 364 इज इक्वल टू, तीनों टर्म में 2 को कॉमन निकाल लें। देयरफॉर 2 कॉमन निकालने पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0।
2 पूरे टर्म में कॉमन है, LHS में कॉमन है, तो 2 को RHS में ले जाएंगे, 0 से डिवाइड होगा एंड देन बिकम 0. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0 इज फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ इस इक्वेशन को मिड सॉल्व स्प्लिट करना है. सो 182 का प्राइम फैक्टर निकालें, 291 एंड इसको 7 से डिवाइड करें 13. Here are 3 प्राइम फैक्टर्स 2, 7 एंड 13. तो इन तीनों प्राइम फैक्टर्स के 2 ग्रुप बनाए, 2, 7 या 14 एंड 13. 14 एंड 13 2 ग्रुप बना. दोनों ग्रुप में से दोनों को, एक को नेगेटिव लिखें नेगेटिव 13x और एक को पॉजिटिव लिखें 14x. तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. 14x माइनस 13x हम x के बदले लिख सकते हैं बिकॉज सब्ट्रैक्ट करने पे x आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -1. इन दो में से x कॉमन ले लें, x इज कॉमन, देन x प्लस 14. सेकेंड 2 टर्म में से, लास्ट के 2 टर्म में से -13 कॉमन ले लें. -13 कॉमन लेने पर बचेगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0. अब इस दोनों टर्म में से x प्लस 14 इज कॉमन, x प्लस 14, फर्स्ट टर्म में बचेगा x, सेकेंड टर्म बचेगा 13 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट, इस फैक्टर को 0 बताने के लिए x का वैल्यू -14 रखना पड़ेगा, और इस -14 तो 0 हो जाने पर 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर इज 0. सो x इज इक्वल टू -14 एज वेल एज यहाँ पर x इज इक्वल टू 13. 2 आंसर आएंगे, बट हमें चाहिए था पॉजिटिव इंटीजर एंड -14 इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 13 ओनली. x इज 13, then their next integer or next consecutive integer is x plus 1, which is 13 plus 1, which is equal to 14. Therefore, two integers are this is consecutive integers 13 and 14. This is the answer. Question number 5. There is a triangle, right angle triangle, let it right angle at B, and altitude of triangle which is AB is 7 centimeter less than its base. तो बेस को हमने 1 से जूम कर लिया, सो ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस, x माइनस 7, एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर. तो यूज पाइथागोरस थ्योरम which is perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square. Perpendicular is x minus 7 whole square plus base is x square is equal to 13 square. This is identity by Pythagoras theorem. Now इसको होल स्क्वायर को ओपन करें, a माइनस बी होल स्क्वायर. तो फर्स्ट इज ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी एक्स इंटू 7 प्लस बी स्क्वायर विच इज 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169. एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर लाइक टर्म है, इट इज 2x स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14x प्लस 7 7 जा 49, और इस 169 को LHS में ले आए
-169, RHS में बचेगा 0. इन नेक्स्ट स्टेप 2x स्क्वायर माइनस 14x 49 minus 169 is -120 is equal to 0. इसके नेक्स्ट में 2 कॉमन ले लें. 2 is common. x square minus 7x minus 60 is equal to 0. x square minus 7x minus 60 is equal to 0. Now 2 को RHS में ले जाएं. इधर मल्टीप्लाई है, RHS में 0 में डिवाइड होगा. 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0. Therefore इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. अब हम इसको फैक्टोराइज करें. 12 5 जा 60, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. इन दो टर्म में से x कॉमन निकाले. x इज कॉमन. फर्स्ट टर्म में x बचेगा, सेकेंड टर्म 12 नेगेटिव 12 प्लस इन दोनों टर्म में 5 कॉमन होगा. x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट x माइनस 12 इन दोनों टर्म में से कॉमन करें. x माइनस 12 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू -5. x इज इक्वल टू -5. -5 कैन नॉट बी लेंथ ऑफ बेस ऑफ एनी ट्रायंगल. देयरफॉर x इज 12. बेस इज 12 सेंटीमीटर. देयरफॉर दिस इज द बेस 12 सेंटीमीटर. देयरफॉर altitude 7 centimeter less than base, which is 12 minus 7 is equal to 5 centimeter. Therefore, this is the answer. Base is 12 and altitude is 5 centimeter. Question number 6. There is a cottage industry produces some item, some pottery in a day. Let number of pottery produced in a day, number of pottery produced in a day is equal to x, and cost of each pottery on particular day, cost of each on particular day is equal to 3 more than twice the number of pottery, 3 more than twice the number of pottery produced at that day, and also the total cost of pottery on that day is equal to ₹90. तो एक दिन में x पोटेरी प्रोड्यूस हुआ, और जिस दिन x पोटेरी प्रोड्यूस होता है, हर पोटेरी को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3 more than twice the number of pottery produced. This is the cost of one pottery and this is the number of pottery. Therefore, total cost is equal to total cost of pottery on that day. Total cost is equal to number of pottery produced multiplied by cost of each pottery, and the total cost is given. It is ₹90. Now we reduce it into quadratic equation. x को मल्टीप्लाई करें यहाँ पर 3x प्लस x को 2x से मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर, और 90 को इधर लाएं -90 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को थोड़ा
रिड्यूसिंग एक्सपोनेंट में लिखें, इट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज 2 इंटू 90 इज 180, नेगेटिव 180। अब इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद जो नंबर आए, जो नंबर लिखे हैं, उसका प्रोडक्ट नेगेटिव 180 होना चाहिए एंड सम करके 3x पॉजिटिव 3x होना चाहिए। सो 180 को फैक्टराइज करते हैं, 290, 2 से डिवाइड करते हैं 45, 3 से डिवाइड करते हैं 15। अब सारे प्राइम फैक्टर के जो अभी तक निकला है ग्रुपिंग कर लें। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 15 माइनस 12 इज 3। तो हम इस पूरे फैक्टर को 12 इंटू 15 लिख सकते हैं। दो ग्रुप बनाया, 2 फैक्टर्स सच दैट 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 और 15 और 12 को मल्टीप्लाई किया तो 180। देयरफॉर मिडिल टर्म कैन बी स्प्लिटेड एज 15x माइनस 12x। 3x को 15x माइनस 12x लिखे, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। दो टर्म में कॉमन लें, x इज कॉमन, 2x प्लस 15। इन दो टर्म में 6 इज कॉमन, नेगेटिव 6 इज कॉमन, 6 2 जा 12, 2x, 6 15 जा 90 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इस बाइनोमियल में से 2x प्लस 15 को वापस कॉमन ले लें। 2x प्लस 15 इज कॉमन, फर्स्ट टर्म में x है एंड सेकेंड टर्म में 6 है, इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 15 को लिखें 0, आइदर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू नेगेटिव 15/2 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू 6। द नंबर ऑफ कोटेरी कैन नॉट बी इन नेगेटिव, देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर आंसर इज x is equal to 6 और number of rotary produced on that day is 6।